इलेक्शन कमीशन के वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर मतदाता जागरूकता के लिए इस बार क्या हुआ खास और किससे हुई बात। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप सुन रहे हैं वोटर आंटी को। डालें वोट, बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाएं। इसी पर्व के लिए क्या तैयारियां हुई, आसाम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नितिन खाड़े जी ने हमें बताया। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब सुनिए डिस्ट्रिक्ट डायरी। Hello, I am Nitin Khade. I am Chief Electoral Officer Assam, and you are listening to me on web radio Hello Voters. हर वोट है जरूरी। Thank you so much, Nitin ji, for taking out time for us. Now, my first question is, what have been the reasons, challenges, and benefits of organizing a multi-phase election in Assam? Assam traditionally is having multi-phase elections, and the reasons are, I think, related to the logistics and the facilities for ensuring transportation and availability of manpower, security forces. Assam generally has seen 2 or 3 phase elections, and if you have a multi-phase election, then you can transfer vehicles from one phase to another phase, so then you don't face shortage of vehicles. Okay. So tell me, how have the arrangements been different this time from the last assembly elections in 2019 in terms of guidelines, postal ballot facilities, and anything else that you would like to tell us about? This election is unique in terms of the COVID pandemic background. The Election Commission has issued guidelines for conducting elections during COVID times. So Commission has given guidelines to ensure safety of the voters as well as safety of the polling staff, election staff. Commission has prescribed that when we will have the polling on that day, the polling station has to be sanitized and voters have to be provided with hand washing facilities, sanitizers. Then the polling staff also has to be given all the necessary COVID protective material. So this is about the actual polling day. And in the run up to the polls, the commission has prescribed that the political rallies, they should be conducted while observing COVID protocol. So that is about the politicking part. Okay, and then if we talk about voters, can you tell us about some new voter outreach initiatives? First of all, the youths, those who are just turned 18 and those who are first time voters, then we have tried to reach out to those people who live in remote areas, to the other sections of population like the Divyang voters, and to have general awareness about the voting right and responsibility. We have conducted a large scale sweep campaign. We have started a multimedia campaign. Our advertisements are coming on TV, social media, newspapers. We are going on radio. And we are on radio right now. Web radio Hello Voters. Any special message for all the people out there listening to you on radio Hello Voters? I would like to tell all the voters that voting is the most basic right which one gets after he is citizen of a country. So that gives him say in the governance of the country. So please do exercise this right. Please be a stakeholder in the democratic process, and please strengthen the democratic process. Definitely. And thank you so much, Nitin ji, for taking out time for us. Radio Hello Voters पर खास नितिन खाड़े जी के लिए. Coming up next, a song from Assam. নগৰ গাঁও সামৰি আহা সকলোলাই ভোটদান কৰি গণতন্ত্ৰক ৰাখো জীয়াই। আমি সজাগ ভোটাৰ, ভোটদান আমাৰ অধিকাৰ। আমি সজাগ ভোটাৰ, ভোটদান আমাৰ অধিকাৰ। आज ना हमारा एरोप्लेन मोड दबा रह गया, इसीलिए शायद सारे एग्जाम्पल सीधे एरोप्लेन से ही उतरकर चले आ रहे हैं। तो वो जो सेफ्टी अनाउंसमेंट होती है ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर दूसरों की मदद के लिए जाएं। यही कहा जाता है ना। बिल्कुल यही बात चुनाव आयोग का भी मानना है। हम खुद सेफ रहेंगे तभी तो दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। बस इसीलिए इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया गया है, ताकि सबको कोरोना वैक्सीन लगे और वो इन आने वाले इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से सेफ और तैयार हो पाए। पोल ऑफिशियल्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स डिक्लेयर किए जाने पर आइए सुनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा का क्या कहना है।
This period of unprecedented health crisis will also be remembered for the innumerable acts of courage, compassion, selflessness by the so-called ordinary people doing most extraordinary acts. Our individual and collective tributes to the COVID warriors and heroes, doctors, paramedic staff, nurses, researchers, scientists, and last but not the least from ECI point of view, all our officials on the election duty. I am glad to report to you that on the recommendations of the Commission, Health Ministry has already declared all our poll officials as frontline workers for vaccination. And the Commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated, then only in the headquarters it will start from the helpers and the Commission will get vaccinated in the end and not in the beginning. ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोरा जी, रेडियो हेलो वोटर्स पर। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप हैं वोटर आंटी के साथ, और आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मिली, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं सोच रही हूँ कि आज कॉल किसको लगाया जाए। अच्छा, पिछली कुछ बार से लगातार लड़कियों से बात हो रही है, तो इस बार मैं कॉल लगाने जा रही हूँ तमिलनाडु के विल्सन को। हेलो, इज दिस विल्सन? यस, होल्ड ऑन, आर यू वोटर आंटी? यस ऑफ कोर्स। अरे वाह, आप तो झट से पहचान गए। बिल्कुल सही, आई एम वोटर आंटी। विल्सन, थैंक यू फॉर योर मेल्स, और आपने लिखा है दैट यू वांट टू आस्क मी समथिंग। यस। And what is that? Ma'am, I'm a bit confused about voter information slip. And why is that? I want to know what exactly is the voter information slip. Is it used to identify the voter? And tell me, can it be used as identity proof also? Well, this is very important query, Wilson. Election Commission of India ensures the distribution of voter information slip to each household is completed at least 5 days before the polling day. The voters should use documents approved and enlisted by ECI as their identity proof. Now, hope you are aware of those documents, Wilson. Yes, Epic, Aadhaar card, Manrega job card, PAN card, bank or post office passbook with photograph, health insurance smart card, driving license, Indian passport and service identity card with photograph issued to employees by central or state government, PSUs or public, smart card issued by RGI under NPR or any pension document with photograph. Very good. Very clearly, voter information slip is for voters' convenience, not to be used as ID proof. Wilson, I hope I have cleared all the confusion. Yes, indeed. Thank you so much for answering my mail. Thank you so much. तो सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। ഹലോ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഹലോ വോട്ടേഴ്സ്, ഓരോ വോട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടത്। एक्चुअली मुझे लगता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों का एफर्ट है, वो अपने आप ये कहता है कि हम में से हर कोई हर संभव कोशिश इसीलिए करता है ताकि डेमोक्रेसी मजबूत बनी रहे और कोई भी वोटर छूटे ना। ये एक दूसरे के साथ की ताकत ही है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। एक ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट साथ और उसके होने से मिलने वाले हौसले की कहानी आइए सुनते हैं चुनाव की कहानियों में। चुनाव की कहानियां। ये कहानी है दिल्ली चुनाव कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी बीडी की, जिनका ड्यूटी के प्रति समर्पण और निष्ठा सभी के लिए एक मिसाल है। अरे, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? इलेक्शन अफसर के कमरे में घुसते हुए शर्मा साहब ने कहा। अफसर साहब कुछ मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं। आते ही बीडी जी के हाथ की चाय पीने की इतनी खराब आदत लग चुकी है कि किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती, और अपनी धुन में कई बार मैं उनको आवाज़ ही लगाता रहता हूँ और फिर एहसास होता है अपनी बेवकूफ़ी का और अपनी जाती यादाश्त का। बीडी साहब तो रिटायर होकर घर पर आराम कर रहे होंगे, पर कई बार ये भी विचार आता है कि उनके जैसा व्यक्ति क्या आराम कर सकता है? वो रोज़ यहाँ सुबह सबके आने से पहले पहुँच जाते। मजाल है 30 सालों में कभी लेट हुए हों। कार्यालय की हर चीज़ जो चमक रही है वो बीडी की चमकाई हुई है। हर चीज़ को सलीके से अपने ठिकाने पर रखना बीडी के स्वभाव का हिस्सा था। इस कार्यालय के सख्त पहरेदार थे बीडी, जो इस देश के प्रजातंत्र की नींव है। चुनाव का हक उसे सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए दिन रात एक करते थे बीडी।
दिन को और काम को सुव्यवस्थित रखते थे। पिछले 30 सालों में अफसर तो 8 बदल चुके हैं, पर हमारे बीडी वही रहे। हर अफसर को समझते, उनका ख्याल रखते। मंजर तो तब देखने लायक होता था जब चुनाव के दौरान ऐसा लगता कि बीडी के पैरों में पहिए लग गए हैं। 5 से 7 किलोमीटर तो दफ्तर में इधर से उधर चलकर ही हो जाते थे उनके। नींद और थकान तो बीडी के पास फटकती भी नहीं थी। 14 से 15 घंटे तो वो बिना रुके काम करते थे और इन्हीं के काम से औरों का काम चलता था, क्योंकि काम करने के लिए ईंधन तो यही देते थे। छुपे हुए नायक हैं हमारे बीडी। हर चुनाव की गाड़ी दौड़ाने वाले शर्मा जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हामी भरते रहे। चुनाव की मशीनरी के बीडी एक अभिन्न अंग हैं। हम सब भी लोकतंत्र की पूरी मशीनरी का एक अंग हैं। क्या हमें इसमें भाग नहीं लेना चाहिए? इसका रंग है चेहरे पे और शोर धड़कनों में, फिजा है सांसों में और जिंदगी रगों में। अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। कई बार मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा शस्त्र और सहारा है। इससे कितनी परेशानियां पहले ही टल जाती हैं अगर टाइमली, रेलेवेंट और ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी कोशिश यही है कि आप तक इलेक्शन रिलेटेड जानकारियां विश्वसनीय ढंग से समय रहते पहुंचती रहे। इसका एक जरिया हमारा ये वेब रेडियो भी है। पीने का पानी, सेपरेट क्यू, शौचालय, रैंप, ग्राउंड फ्लोर पर वोटिंग बूथ, वोटर असिस्टेंस बूथ, फर्स्ट एड चिकित्सा सुविधाएं, स्पेशल वॉलंटियर, व्हील चेयर, ये सब वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं जो हर पोलिंग स्टेशन पर अवेलेबल होंगी। बीएलओ हर पोलिंग स्टेशन पर आसपास रहने वाले दिव्यांगजनों को इलेक्टोरल रोल पर आइडेंटिफाई यानी चिन्हित कर लेते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। आप चाहें तो PWD ऐप या वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करके ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। इस बात पर चलिए सुनवाते हैं वाह इलेक्शन वाह। पर उसके पहले सुनिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में लंबे समय तक मिस्टर रिलायबल रहे राहुल द्रविड़ क्या कह रहे हैं। I still play for India by casting my vote diligently. Cast your vote to make democracy win. I ought to vote. You are listening to Radio Hello Voters. हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब शुरू होने जा रहा है वाह इलेक्शन वाह। अरे आ गए मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार, आइए पधारिए। अरे हम आए हैं तो अब एक शेर सुनकर ही जाएंगे। आओ। अरे मिश्रा बेटा, मेरे लिए भी कभी कुछ सुना दिया कर हैं? हाँ हाँ मेरी प्यारी अम्मा, ये वाला शेर बिल्कुल आप ही के लिए है। इरशाद बेटा इरशाद है। हाँ तो अर्ज किया है, उनकी यादों के पत्थर और सीमेंट से हम अपना घर बनाएंगे। मूंगफली जैसी सैलरी को हम रसमलाई कर जाएंगे। चिंता काहे करती हो अम्मा, आप जैसे सभी 80 वर्ष से अधिक के मतदाता अब पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट दे पाएंगे। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप सुन रहे थे इलेक्शन मुशायरा वाह इलेक्शन वाह। वोटर आंटी के साथ आप सुन रहे हैं वेब रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। तो जी अभी आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है पर आप भारत के बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो आप खुद को ओवरसीज वोटर के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। आपको भरना होगा फॉर्म 6A। अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़वाने के लिए आप वोटर पोर्टल NVSP या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एड्रेस आपके पासपोर्ट पर लिखा है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नाम जुड़वाइए। वोटिंग वाले दिन आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा अपने पोलिंग स्टेशन पर। आपको खास तौर पर बता दें कि ओवरसीज इलेक्टर्स को एपिक कार्ड नहीं दिया जाता है। उनका पासपोर्ट ही वोटिंग के लिए उनका पहचान पत्र होता है। इलेक्टोरल रोल में उनका नाम एंड में यानी आखिर में जुड़ा हुआ होता है। अपना नंबर आने पर आप बिल्कुल एक आम भारतीय नागरिक की ही तरह EVM और VVPAT के जरिए मतदान करेंगे। एक और बात, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radiohellovoters@gmail.com। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी।